Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you are safe and healthy. Welcome to lecture number 3 of our second week. And let's just recall what we have discussed in our previous On the site of gas exchange in the lungs, and they're located here at the very end of the bronchioles. They have a structure that's something like this. We often describe it as having a sort of cauliflower shape, but basically they're just tiny little air sacs at the end of the bronchioles. If we see it here represented in more of a diagram format, we can see what's going on. First of all, oxygen and carbon dioxide are constantly being supplied and removed through breathing. Let's look a little bit closer at the lining here. Notice that it's only 1 cell thick. Oxygen can diffuse across the cell membrane of the cell that lines the alveolus. From there, it can obviously diffuse across to outside of that cell. The same thing applies for the lining of the blood capillary until eventually it diffuses into the red blood cell where it can bind with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Similarly, carbon dioxide can also diffuse across these cell membranes and reach the alveolar sac to then exit the body. Now then, oxygen, as we've already said, is constantly being supplied through breathing, but it's also being taken away from this area because of the blood flow. What this means is that we are constantly maintaining a concentration gradient, which is what allows this transfer of gas, this gas exchange, to continue. There are some important features of the gas exchange surface that you need to know. First of all, it's got a large surface area, which is provided by this particular shape of the alveoli, and also by the fact that there are lots and lots and lots of them inside of the lungs. It's very thin, which provides a short diffusion pathway. Notice that the lining is only 1 cell thick. It's also got a moist lining. The inside of each alveolus sac is moist, which allows gases to dissolve, which then allows them to diffuse across the lining. It's got a very good blood supply. Each one of the alveoli has lots and lots of blood capillaries surrounding it. If we have a little look at what lung tissue looks like under a microscope, we can see this sort of zigzag, crisscross sort of mesh of little almost streams. This is the capillary network. And we can tell that because if we look at one of these individual little red splotches here, those are individual red blood cells. Finally, there is very good ventilation, and that basically just means there's a really good supply of air, which is supplied through breathing. A little bit of exam help on this. You might get asked to describe the features of the lungs that make gas exchange efficient. Well, the exchange surface has a large surface area, and that's provided by the large number of alveoli, and the surface is only 1 cell thick. Remember that that provides a very short diffusion pathway. And it is supplied with blood by a very dense capillary network. So there, you're easily going to get those 3 marks. So here we go. Now coming to our today's lecture, and we are going to end our chapter in this lecture, inshallah. So the topic is inspired and expired air. We definitely know the difference between inspiration and expiration. So when it comes to inspired and expired air, it means inspired air, simply inspired air वो बच्चों जो बाहर से जो हम normally बैठे हैं और हम सांस ले रहे हैं, जो हम बाहर environment से जो air को intake कर रहे हैं, which is exhalation, inhalation, or you can say inspiration, वो inspired air है. And we all know कि इसके अंदर, see the table here, we all know it is 21% oxygen है इसमें, carbon dioxide की क्या quantity है, nitrogen कितनी है, and so on. When it comes to expired air means कि जो inspire हमने air की थी, what happened to that air, and then उसके बाद जो lungs में air remaining है, उसको हम जो बाहर exhale कर रहे हैं, उसमें कौन-कौन से components हैं, and this is an important thing. So, and you have to memorize all these things. कि oxygen आप 21% inspire कर रहे हो, 16.4% expire कर रहे हैं, जो remaining percentage है वो हमारी body में चले जाती है, diffuse हो जाती है. Carbon dioxide 0.03% है environment में, 0.04% somehow, और body से जो जा रही है, it is about 4%, which is huge. Nitrogen same रहती है दोनों cases में, because we cannot use this gaseous nitrogen. Coming to the water vapors, which is very important. Rarely
सिर्फ मानसून के सीजन में कुछ वाटर वेपर्स हमारे यहाँ पे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सफोकेशन भी ज्यादा होती है। लेकिन व्हेन एवर वी एक्सहेल, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम कभी बंद गाड़ी में, या वेरी सिंपल एग्जांपल कि हम अगर किसी मिरर पे या किसी ग्लास पे जब एक्सहेल करते हैं तो उस पर मॉइस्चर आ जाता है। एंड इट इज बिकॉज कि जब भी हम बोलते हैं या हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे मुंह से हमारे एयर के साथ वाटर वेपर्स भी आ रहे होते हैं, सो विच इज इन द सैचुरेटेड फॉर्म। सेकेंड लास्ट थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर डेफिनेटली वेरिएबल हो सकता है। आजकल जिस तरह 41-45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा हॉट एयर इनहेल कर रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो जब हम एक्सहेल करते हैं उस एयर को बाहर वापस, तो वो जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा उतनी ही टेम्परेचर बाहर निकलेगा। अच्छा, यूजुअली ऐसे भी होता है इसके सर्दियों में, क्योंकि हम बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो हम वो इनहेल तो कर लेते हैं, और वो जो हमने लास्ट पढ़ा है अभी कि जो हम एयर को इंस्पायर कर रहे हैं वो हमारे जो पूरे रेस्पिरेशन ट्रैक्ट से जो गुजर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, वो इवेंचुअली उससे पास करते करते उसका टेम्परेचर 37 तक आ जाता है। इट डजंट मीन कि एग्जैक्ट 37 तक आएगा, वेरिएबल रहता है, लेकिन इतना मॉडरेट हो जाता है कि हमारे लिए बियरेबल हो। लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे एयर को, अगर सर्दियों में एक्सहेल करेंगे तो इवेंचुअली हम अपना टेम्परेचर लूज कर रहे होते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम अपने हाथों के ऊपर एक्सहेल करते हैं ताकि हम उस हीट को यूज कर सकें, एंड सो ऑन। कमिंग टू द डस्ट पार्टिकल्स, जो कि डेफिनेटली होते हैं हर वक्त, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, लेकिन जब हम उसे एक्सहेल कर रहे हैं कि तो मे बी 1% या 0.01% कुछ इस तरह से dust particles home. So you have to memorize this table. This is very important. The second thing we have is lung capacities. The basic meaning of the capacity of the lungs is that how much air it can accommodate. कि हमारे लंग्स में कितनी मैक्सिमम एयर या नॉर्मल कंडीशन में कितनी होती है, और मैक्सिमम कितनी इनहेल की जा सकती है, एक्सहेल कितनी की जा सकती है। सो ओनली सम ऑफ द एयर इन द लंग्स इज चेंज्ड इन ईच ब्रीदिंग साइकिल। इट मीन्स कि हमारे लंग्स में हर दफा लंग्स पूरे के पूरे इन्फ्लेट और पूरे के पूरे डिफ्लेट नहीं होते। हम जब नॉर्मली बैठे हैं, इन ईच नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग साइकिल अबाउट 500 सेंटीमीटर ऑफ एयर एंटर्स इन द लंग्स, और इतना ही 500 सेंटीमीटर क्यूब ही हम उसे ब्रेथ आउट करते हैं, known as tidal air. This is an important thing you have to memorize. टाइडल एयर क्या है कि जब अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस में बैठे हैं, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग साइकिल में, सो 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर को हम इनहेल कर रहे हैं और 500 को ही एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल सिटिंग कंडीशंस में, जिस तरह अभी आप लेक्चर सुन रहे होंगे। अगर हम डीप ब्रेथ लेते हैं, लाइक जस्ट लाइक इस तरह से जो डीप ब्रेथ आप इनटेक कर रहे हो, इसमें तकरीबन आप 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर को इनटेक कर लेते हो, इनहेल कर लेते हैं, which is known as complemental air. और यही complemental air जो आपने इनहेल की है, इसको जब आप एक्सहेल करोगे बाहर, this will be called as supplemental air, और वो सेम वॉल्यूम ही होगा। अच्छा, जो वॉल्यूम्स में अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, which is about टाइडल एयर का 500 सेंटीमीटर क्यूब था, कॉम्प्लीमेंटल और सप्लीमेंटल एयर का 1500 है, एंड सो ऑन। ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। इट इज एन अप्रोक्सीमेट रेंज, बट वेरिंग डजंट मीन कि बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। Okay, last thing, second last thing, when we take a deepest breath, जब हम maximum deepest breath लेते हैं, so we can take 3500 to 4000 centimeter cube of air. It means this is very important. It means कि lungs में 3500 to 4000 इतनी ही maximum air का volume मतलब हमारे lungs उसको compensate कर सकते हैं, उसको accommodate कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं vital capacity. वाइटल कैपेसिटी मींस कि हमारे लंग्स में कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि कितनी वो एयर को इनटेक कर सकता है। अच्छा, इस सब में भी, इस डीपेस्ट ब्रेथ में भी जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम 4000 एक्सहेल नहीं कर देंगे, हमें पीछे फिर भी 1500, एटलीस्ट 1500 पीछे पीछे रह जाएगा। और नो मैटर व्हाट हम 4000 इनहेल करके जितना मर्जी जोर से, जितना फोर्स लगा के एक्सहेल कर देंगे, still behind जो है वो 1500 centimeter cube air रह जाएगी, which is known as residual air. The line is the same. No matter how hard a person tries to force all the air out of his lungs, there is always some left behind, which is the residual air, which is 1500 centimeter cube. So we just studied tidal air. अगर हम normal conditions में बैठे हैं, which is 500 centimeter cube. अगर हम normal deep breath लेते हैं, तो वो complemental air है 1500 centimeter cube. उसी को जब हम exhale करेंगे, that is supplemental air. This is so simple. लेकिन जब ये questions पूछे जाएंगे, next thing
कि वाइटल एयर कैपेसिटी क्या है, लाइक वाइटल कैपेसिटी कि लंग्स की जितनी टोटल कैपेसिटी है एयर को मैनेज करने की या अकोमोडेट करने की, इट इज वाइटल कैपेसिटी. एंड नो मैटर व्हाट हाउ हार्ड यू ट्राइज टू फोर्स ऑल द एयर आउट ऑफ योर लंग्स, जो एयर रिमेनिंग रह जाएगी लंग्स में, इट इज रेजिडुअल एयर व्हिच इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हेडिंग इज स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग. जब हम बात करते हैं ना स्टिमुलस की, स्टिमुलस मींस कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि ब्रीदिंग के लिए हमें फोर्स करती है, बिकॉज ब्रीदिंग हमारे लिए इनवॉलेंट्री है. सो डेफिनेटली आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग फंक्शन. सो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है तो इट मींस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, और किस वक्त किस चीज की क्वांटिटी को बढ़ाना है और कम करना है. यू नो दैट जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. सो हम ज्यादा तेज सांस लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, एंड एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बॉडी से बाहर जा सके. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थिंग कि हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, यू कैन से मैमल्स में, जो स्टिमुलस है ब्रीदिंग का, मतलब जिसकी वजह से बॉडी ब्रीदिंग का प्रोसेस करती है, इट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कि बॉडी में वो जो 4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, दिस 4%, इस 4% कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यू कैन से कि जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त ये मैसेज जा रहा होता है हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन उसको मैनेज किस तरह से करता है, वो ब्रेन मैसेज भेजता है लंग्स की तरफ ताकि वो इनहेल करें ऑक्सीजन को, और जब वो इनहेल करेंगे, और तो एक्सहेलेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. इनहेलेशन के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, लेकिन एक्सहेलेशन के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें आपको पता है कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल यूजुअली रिलैक्स कर रहे होते हैं उसमें. अच्छा, एनीवेज जो चीजें भी हमने सीखी, इट वाज द स्टिमुलस ऑफ ब्रीथिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है पूरा वो स्टार्ट होता है. नो ब्रीथिंग मूवमेंट अकर्स व्हेन देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स. यूजुअली ऐसा होता नहीं कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो. वो तब हो सकता है कि जब हम ओवर ब्रीथिंग करें. एंड व्हाट इज ओवर ब्रीथिंग? ओवर ब्रीथिंग ये है कि भाई नॉर्मल में सिचुएशन में बैठ के मैं तेज तेज सांस लेना शुरू कर दूं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? हमने अभी तक यूजुअली पढ़ा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हर ब्रीथिंग साइकिल के अंदर एक छोटा सा गैप होता है. वो गैप वो टाइम प्रोवाइड करता है, एम्पल टाइम, कि जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो सके. जब हम ओवर ब्रीथिंग करेंगे तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो उसकी वजह से डेफिनेटली ब्रेन तो लंग्स को मैसेज भेज रहा है कि आपने कि ब्रीदिंग करनी है, एयर को टेक इन करना है, एक्सहेल करना है, एंड सो ऑन. लेकिन क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हमारे हार्ट तक, स्पेशली हार्ट तक और डिफरेंट अदर ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, एंड जिस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, एंड देयर कैन बी मेनी अदर थिंग्स, डेथ हो सकती है. द लास्ट हेडिंग इज इरिटेंट पार्टिकल्स. ओके, इरिटेंट पार्टिकल्स में वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि एसिड की बोतल को हम स्मेल करके देखें, हमें पता है कि हमारी नोज की म्यूकस लाइनिंग में हमारे पास सेंसरी सेल्स होते हैं. वो सेंसरी सेल्स मैसेजेस को गेन करते हैं, एंड देन वो इंस्टेंटली मैसेजेस जा रहे होते हैं ब्रेन तक. हमें ये भी पता है कि हम कहीं पर, जब हमें कहीं खुशबू आ रही होती है तो हम भूख ना भी लगी हो और हमारी पसंद की चीज हो तो हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ दोज रिसेप्टर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर. तो वो स्टिमुलस क्रिएट करते हैं कि भाई तुम्हारी पसंद की चीज है. अगेन, जैसे ही ब्रेन किसी एसिड को स्मेल करता है, एंड वी नो दैट कि अगर हम उसके वेपर्स को, क्योंकि जब हम उसकी बॉटल खोलते हैं तो अंदर से वेपर्स निकल रहे होते हैं, हम जब उसके वेपर्स को इनहेल करेंगे तो वो हमारी रेस्पिरेटरी लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, and our brain knows that. So it is a negative feedback. तो जैसे ही हम आप उसको इनहेल करेंगे तो वो ब्रेन आपकी ब्रीदिंग को इंस्टेंटली रोक लेगा, आप उसे इनहेल नहीं कर सकते. आपको many of us had tried this thing. हम में से कईयों ने इस चीज को ट्राई किया हुआ है कि हम जैसे ही एसिड को सूंघते हैं साथ ही हमारा सांस रुक जाता है. और इन सीजन ऑफ जब बाहर का सीजन स्टार्ट होता है उस वक्त बहुत सारे फूल अपने पोलन्स रिलीज करते हैं, एंड दोज आर आल्सो इरिटेंट पार्टिकल्स, एंड समटाइम्स इरिटेंट पार्टिकल्स एंटर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. और हमें पता है समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक वायलेंट किस्म की कफ शुरू हो जाएगी या स्नीजिंग शुरू कर देंगे, एकदम से 10-12 छींकें आने लग जाएंगी. इट मींस कि कोई इरिटेंट हार्मफुल चीज बॉडी में चली गई है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और बॉडी उसको बाहर
एक्सपल्शन कर रही होती है उसकी थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। इसलिए इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि खांसी को और अपनी स्नीजिंग को कभी नहीं रोकना चाहिए। हाँ, अगर आपको वॉयलेंट कफिंग है तो ये सॉरी अगर डिजीज्ड कफिंग है, किसी डिजीज में गला खराब हुआ है तो कफिंग है, तो उसको हम रोकने को इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा कफिंग में जाएंगे तो गला और ज्यादा हर्ट होगा उसमें। सो द लेसन बिहाइंड दिस इज कभी अपनी छींक या खांसी नहीं रोकनी चाहिए। लास्ट थिंग एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज gases that stay in green plants. I think green plants में there are no specialized breathing mechanism. कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है, लंग्स नहीं है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट दे हैव, वी ऑल नो दैट दे हैव स्टोमेटा। हमें हमेशा अपनी ओवंस में भी पढ़ा था कि प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं, थ्रू स्टोमेटा दे डिफ्यूजन इसलिए क्योंकि हमेशा गैसेस मूव करती हैं प्लांट्स के अंदर यूजुअली फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर लीव और यंग स्टेम्स में हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है जो कि गैस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन बाय द टाइम इन ओल्ड वुडी स्टेम्स, जो ओल्ड वुडी स्टेम्स हैं उनके बाहर एक वाटरप्रूफ कॉर्क जैसा स्ट्रक्चर टिश्यू डेवलप, कॉर्क टिश्यू डेवलप कर जाते हैं। उन कॉर्क टिश्यू के अंदर ये छोटे टाइनी पोर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये आपको इवन रोज फ्लावर के रोज प्लांट के अंदर भी नजर आएंगे। तो इन छोटे नजर आ रहे हैं, दीज आर लेंटिसेल्स। ये इन लेंटिसेल्स में पोर्स होते हैं एंड ये गैसेस का एक्सचेंज इन लेंटिसेल्स से हो रहा होता है। सो इन ऑल water develop lenticels. So water corks develop and lenticels are formed in the cork for the exchange of gases. Now what will happen to the roots? जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन लेती हैं? डेफिनेटली हम जब प्लांट्स को पानी देते हैं तो वो उस पानी, यूजुअली पानी देने का मकसद होता है कि जितने भी उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिसॉल्व हो। सो प्लांट्स उन डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो यूजुअली रूट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं सॉइल से इन द डिसॉल्व फॉर्म फ्रॉम द रूट हेयर्स, और रूट हेयर की वॉल से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव करती है। सो रूट्स की ऑक्सीजन स्टेम से लीव नहीं कर रही होती, रूट्स की ऑक्सीजन रूट से ही लीव कर रही होती है। एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, और एक बड़ा हैंडसम सी डिफरेंशिएशन निकाली जा सकती है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। पॉइंट नंबर 1, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज की जा रही है एंड वी नो दैट कि किस तरह से रिलीज की जा रही है, कि जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, साथ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और साथ एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर की जाती है प्लांट के अंदर। टेक्निकली ये वही एनर्जी है जो हम प्लांट से इवेंचुअली हम ले रहे होते हैं। Second point, oxygen is used and carbon dioxide and water is given off. We know that carbon dioxide and water are used while oxygen is given off in photosynthesis. Respiration जो है वो destructive process है। Respiration में breakdown होती है sugar की, और photosynthesis is a constructive process जिसमें building होती है नए molecules की। So photosynthesis के through ही plant आगे ज़्यादा बड़ा होता है, grow करता है, और different अपने जो क्या लें edible structures हैं उनको grow करता है। Second last point, it occurs, respiration occurs all the times in all the cells independent of chlorophyll and sunlight. Definitely respiration हर वक्त इसलिए होती है because जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है respiration होती रहेगी, एनर्जी रिलीज होती रहेगी। लेकिन in case of photosynthesis it only occurs in the cells containing chlorophyll and sunlight. So photosynthesis dependent है chlorophyll पे और sunlight पे। Like if there is sunlight और chlorophyll नहीं है तो photosynthesis नहीं होगा, और अगर chlorophyll है और sunlight नहीं है तब भी photosynthesis नहीं होगा। And the last point, which is important, respiration results in the loss in the dry mass and photosynthesis results in the gain of the dry mass. Photosynthesis में gain of the dry mass इसलिए because कि नए molecules produce किए जा रहे हैं और उनको deposit किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उन molecules को, उन्हीं sugar molecules को break down किया जा रहा है, which is actually a loss in the dry mass. And this was the end of the chapter. Please give it a good read. अपने chapter को book से properly अच्छी तरह से thoroughly read कीजिए, and if you have any question you can you are just free to ask me at any time. Thank you so much. Allah Hafiz.